warm good morning to one and all present here. I, Nandini Srivastav, student of DME Media School, welcome you all to the second edition of World's first 10-day Digital Life International Conference, ICANN, organized by DME Media School in collaboration with School of Communication and Creative Arts, Deakin University, Melbourne, Australia. We are happy to announce that ICANN 4 is supported by Indian Council of Social Science Research, ICSSR. The previous edition of ICANN were indeed a great success. The theme for the first edition was India and Changing Aspects of News. The theme for second edition was Indian Cinema and Alternate Networks. The theme for third edition was Issues of Community, Agenda and News, and hashtag was Conference for Change, which was world's first 10-day Digital Life International Conference. The theme for this year's conference is Information, Communication and Artificial Network, and the hashtag for the conference is Communication Redefined. There will be 36 live sessions, including 9 technical sessions, 3 workshops, 7 panel discussions, 3 special sessions, and 10 masterclasses. All 9 technical sessions are being chaired and co-chaired by women scholars representing different states of the country. I would also like to extend my gratitude to Spark for students with positive attitude and resonating communication, which is Student Council of DME Media School. Journalism at DME is the official newsletter of DME Media School. This fortnightly publications cover all the major activities happening in and out of the campus. It's a student-centric newsletter carried out entirely by them under the supervision of faculty members. I would also like to thank our knowledge partners, K.R. Mangalam University, Gurugram, Haryana, Admas University, Kolkata, Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Mass Communication, Bhopal, and Vigyan Prasad, Government of India. I would also like to thank our academic partners, Department of Communication and Journalism, Guwahati University, and our international partner, Institute for International Journalism, EW Scripps School of Journalism, Ohio University, USA. I would also like to thank the Policy Times as our media partner. It gives me great pleasure to inform everyone that we are live on our official Facebook page. For more information, follow us on our social media handles. Links are being shared in the chat box. You can also check out DME TV, the official YouTube channel of DME, where you can find playlists related to all sessions, lecture series, film festival, and conference. Now, I would like to request Professor Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School, Director DME Studios and Production, Director International Relations, Delhi Metropolitan Education, Noida, to please say a few words. Over to you, sir. Thank you, Nandini. I welcome Mr. R.K. Singh to this session. This is a very vital session because this whole conference, the theme of the whole conference is information, communication, and artificial networks. So apparently the emphasis is more on technology. And that is our number of sessions we have planned, wherein the technology related issues are being discussed, the panel discussions as well as in the master classes. And Mr. R.K. Singh is known for his for his expertise on issues related with the technology in the context, in the backdrop of media, because he himself has been in the broadcast media on the engineering side. So he is well versed with both the contents as well as the technology, but obviously technology is his forte. So that is how we decided to have this session, and we requested him, which he readily accepted, to take a session wherein he is talking about digitalization in the context of the broadcast media. Because nowadays, whichever media we talk about, even print media, even the digital media, which is only on the digital space, and even the entertainment media, everything is on the digital platform. So digitalization is
is very, very important for each one of us. Whatever we are doing from morning till evening, we are banking upon digitalization. Even this conference which we are holding on the Zoom platform, this is an example how digitalization is important for us. And since last year, when we started having this ICANN conference in the digital space, the first two conferences were on the physical mode, but ICANN 3 and now ICANN 4, these are happening in the backdrop of pandemic. So obviously we had no option except to do it virtually, and we projected since last year these two editions of ICANN as the world's first 10-day digital live conference. We are simply not putting everything on the digital space in the sense wherein the data is available, and people are simply accessing that data, the conference papers and all, and then they are having their discussion through expressing their opinion, putting their opinion on the digital platform only, as most of the international conferences are doing. The biggest conference which is organized in the media sector, which is done every year by International Association of Media and Communication Research, IAMCR. They also do this. Since last year, they were doing it. They were not doing the sessions on live. This time, they are having certain sessions live. But we tried that everything has to be in the open space, in the not only in the digital space, but in the digital space in a manner wherein we are before us, the presenters, the communicators are before us, and the participants are before. So everybody is face to face, and then we are having this kind of interaction. So I believe that many such aspects will be touched upon by Mr. R.K. Singh, which will help us in understanding the whole digital issue and the implications, the effect on the media content and delivery. So I'm looking forward, and we all are looking forward to have some very enlightening discourse by Mr. R.K. Singh. So thank you all, and then we are looking forward to listen to Mr. R.K. Singh. Thank you so much, sir, for your wise words. Well, today's session is a masterclass reverberating around the theme digitalization and broadcast, and our special guest is Mr. R.K. Singh. Mr. R.K. Singh in chief of Doordarshan and presently ICT and broadcast media consultant in New Delhi, NCR. Mr. R.K. Singh has over 38 years of experience in the field of broadcasting sector, inclusive operations, general management, procurement, technology, and human resource development. Government of Kenya, Nairobi. He has represented All India Radio in international seminars and conferences and presented technical papers at Geneva, Singapore, Madrid, Kuala Lumpur. He has published a total of 14 technical papers. India as the engineer-in-chief Doordarshan. Mr. Singh has remained professionally active. He has served in both managerial and advisory capacity with reputed education, media and training institute in Delhi and NCR. His scope of working has been extremely diverse, with a broad emphasis on staff selection, training, education, and research. Presently, he is working further on the study machine learning, deep learning, data science. He has received many awards such as Eminent Engineer Award by the Institution of Engineer India for 2000 year for the year 2011, Asian Pacific Broadcasting Union Engineering Prize 1997 and 1998 for the article Knowledge-Based Computer System for Broadcasting Transmit for Diagnosis, published in ABU Technical Review in the category Commended Article, and Akashvani Annual Award for Technical Excellence in 1993 and 1994 for the Best Technical Paper. Now, I hand over forum to Mr. R.K. Singh. Over to you, sir. Well, thank you, Nandini, and I also thank Dr. Ambrish Saxena. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, first of all, I would like to congratulate
Ambrish Saxena and his team for conducting this very unique, what I could say, event. Rather, I will, because I can't put any other word properly. This great event, which I participated even last time also, and see, this is such a wonderful event. You know, there are so many classes and so many activities, and since I have been given this opportunity, and I am sure that people will be benefited. So without wasting any of much time, now I would like to start. So my agenda is slightly bigger, but anyway, we will see. These are the 7 plus 7, 14 items are there. But anyway, no problem. Whatever we cover, it should be very clear. And since I believe in making the concept clear, so one thing I would like to tell my students, that please do not hesitate in asking questions. Even in between also, I don't know what is the system you will be following in the through chat box or whatever, but if you feel that something is important which I should repeat, don't keep it up to the end. I mean, you can ask me, because this class I want to make it interactive, and I want to clear the concept of, there are two things now in our topic. If you see, one is called digitalization and the second one is broadcast media. Now, when we see these two together, first of all, we have to understand both separately, and then what is the impact of digitization on broadcast media. I will start with media rather instead of broadcast media. Media, of course, we are all media students, and I need not define it, but there is a purpose for that. So it's a communication channel through which contents are disseminated. Now, content means anything. It may be news, entertainment, education, data, or anything. And media may include broadcasting, narrowcasting, newspaper, magazine, TV, radio, billboard, and so many other things. Now, media is the plural of medium and can take a plural or singular verb depending upon the sense intended. Now, if I uh, want to define media in a mathematical term, then I can say that, so media is equal to content plus medium, right? It is content plus medium. This is simple mathematics, you can say. Now, if the medium is TV, then it is called TV broadcasting. If it is radio, then it is called radio broadcasting. If it is newspaper, then newspaper, internet, satellite, etc. Right? Now, but even if the same content, if we take some content for media, though the content is the same, but when you are writing for radio or you are developing it for radio or TV or internet or newspaper, you all know that it will be slightly different as far as presentation is concerned. I think this you have been taught also. So I mean, that is the media, and you all know media is the fourth pillar of democracy. Anyway, I will not go into those details. So now, straightway, I will come to broadcast media. Now, just now I have mentioned the term broadcast media. It covers a wide spectrum of different communication methods, television, radio, etc. Now, broadcast media involves, what exactly it involves? It involves electronically and simultaneously sending information. We have to send the information containing signals, print messages, and audio or video content to a vast group of recipients. Naturally, the broadcasting is for a large, we are broadcasting for the whole country or sometimes for the whole world. Well, broadcast is still very relevant. It may seem
old school in the digital age. But when we could talk about the digital media, well, broadcast, that's why we have to differentiate between the old broadcasting and the broadcasting in the digital era. Still, it has a major part to play in getting exposure of ideas, products, services, etc. Information travels along a communication network locally, regionally, and internationally. Well, there are a few things about the advertising broadcasting. I will not go into the details of those things, but still it is relevant. Consumers tend to remember that ads they hear or see it on radio or television. This can be a boon for the brand. We all know that the whole TV, all TV channels and most of the radio channels are surviving on advertisement. So advertisement plays a very important role. Print ads can be a topical and spark discussion. So television is also like that. It is very popular, but sometimes we really get bored by long duration of advertisement, and it is really, I mean, more than saturation. At least I'm sure that all of you must be doing that, and we have to think about it. But then we can't blame the channel also, because they have to survive. They are spending a lot of money. So from where the money will come? In fact, ads are so much that in cricket matches, sometimes somebody told me सब कि आजकल ओवर जो है वो 5 बॉल का होता है. मैंने कहा नहीं कहता सब आप देखिए, because by the time ads are over and next over is starting, 1 ball is already bowled. So that is the condition. But anyway, that is there. Radio has got lot of impact. Again, this point is also not very important for me to discuss because you are all aware about it. Now, briefly, the journey of radio media may be explained as follows. Terrestrial radio broadcasting, it is the oldest, that is medium wave and short wave. Then FM broadcasting, a revolution in broadcast media, because when medium wave and short wave was there, slowly people got saturated because the quality was not so good. But then, and then TV came. At one time, people were thinking that now radio is going. Radio is counting its days, but it was never. And in between came the FM broadcasting. And I tell you, it was a great revolution in broadcast media. When FM came, why FM became popular? In fact, sometimes I ask students also in some interviews and all that. The main reason was that any technology will be successful, will be popular only and only when it is reachable to poorest of the poor. Now, please remember, FM radio, even the short radio was of course, nowadays it is available in your mobile also and so thing. But when it came, the FM radios were costing even 60, 70 or 80 rupees. And that was the one reason why FM broadcasting became so popular. And secondly, the quality was much better than medium wave and short wave. I think this also probably you must have heard. Otherwise, if time permits, we can discuss in detail also. Then came satellite broadcasting. Again, this was a big boon. I mean, satellite means coverage was all over the country, all over the world. And secondly, the satellite, in addition to broadcasting, it is also used for sending the program from one place to another place. That means content distribution. It is being used for content distribution. And after this, it comes the digital era. Then came the digital broadcasting. This, of course, I am going to discuss in detail. And of course, in between, you have got internet broadcasting, web radio, net radio, and streaming. I think you are all, in fact, in this conference, you are doing this. And then podcast.
is also known to all of you. So mainly the technology is responsible to decide future of broadcast media. Now, what are the technology which will decide the future of broadcast media? Of course, as I have already mentioned, technology, which is a revolution. Digital technology, of course, this is our main topic. It consists of half my master class. Um, then satellite communication technology and internet technology. And then, of course, in a big way, AI is coming, artificial intelligence, and it is also going to change the shape of broadcasting. Again, if time permits, we will discuss. Otherwise, this can be discussed separately. And above all, the one technology which is coming and which will again change the all dimensions of broadcasting in our other field also, that is 5G. So these are the few technologies which were there. Now, my aim is we will first see the radio broadcasting, traditional. I mean, then only you can compare it with. This also I will go hurriedly. I mean, just to refresh our memories. Medium wave, short wave, satellite, then elements of radio broadcasting, process of radio broadcasting. Now, these two are very important. And please remember, I will request all the students to remember what are the two main elements of broadcasting. They are very simple. One is content, another is carrier. Now, the content, we always struggle, you know, All India Radio and any other radio station has got two divisions. One is program division, another is engineering division. And we always fight, always say that we are we are strong and we dominate. The programmers say no, we dominate. So that stupidity tussle is always going on. Who is the king? Well, I will say that both are equally important, content and carrier. This, I mean, we have to know. And what are the main process of radio broadcasting? Of course, there are two elements, content and carrier, but there are three process. One is content production or content generation. Second is content distribution. And third is content transmission. Now, you are all aware about content production means it is done in the studio. It may be done outside also. It may be done by recording, interview, all things are there. Then content transmission also, you know that it is given to the transmitter and then we broadcast. In between, there is content distribution. That is important because contents are produced even in the All India Radio. If you see, mainly all the contents are produced in broadcasting house, right? But most of the transmitters are not in broadcasting house. They are very far away. For example, FM transmitters are in, very far on the TV tower. If you have seen, in TV tower, those things are there. Then medium wave and short wave transmitters are there in Nangli and Kingsway camp. So those transmitters are there. Now content is transferred from this place to those places, and that itself was a big problem. And there we will see how digital technology has eased the distribution of content. And third, of course, is transmission. Well, these are just a few types, private, public, and different based on service, But this is just a block diagram. You can say a small that this is again because this is a terrestrial old broadcasting. You can say the equipment. This is a studio part where the content is generated. The content is processed in the studio. It is amplified, and then when it is strong enough, it is put on the transmitter by a process you all know called modulation. And this is the modulated signal, and then it is given to the
mast or tower, and then it is broadcast. When your receiver receives it, again the modulated signal is removed from the signal, and then your receiver will demodulate it. And once it is demodulated, then you get the same signal. And I mean, this is again, I'm 100% sure all of you are aware about it. So basically, technically, we can classify the broadcasting as medium wave, short wave, FM, satellite, and internet. But one important thing, this also we will be discussing later on, that how we superimpose the content on the carrier. That is important. So there are two processes: amplitude modulation and frequency modulation. Mind it, we are discussing terrestrial old type. In the analog era, we are not discussing digital era. So in the analog era, the content is superimposed. It is by a process called modulation. And then the signal carrier becomes modulated carrier. Modulated carrier means the content is already there on the carrier, and then we demodulate it. So amplitude modulation and frequency modulation. Simple, but anyway, I will just review it. You can say that our modulating signal or our voice audible signal is up to 20 hertz to 20 kilohertz. You must have read certainly. And we all know that beyond 20 kilohertz, practically maybe beyond 30, 14 or 15 kilohertz, our ears cannot perceive the sound. That's why audio signal is only up to 20 kilohertz. And then carrier wave, which goes beyond in hundreds kilohertz, that 400, 500, 1000, 2000, then that's, you know, that it is kilohertz, megahertz, gigahertz, etc. These are the carrier. But very interesting thing, all of you know it also, that this modulating signal is audible to us, but unfortunately it cannot travel to a long distance. अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज will go only up to say few meters, but it cannot go to a long distance. Whereas carrier, our ear cannot perceive those frequencies. लेकिन भगवान जो है वो अगर एक में एक क्वालिटी हटा लेता है तो दूसरी क्वालिटी दे देता है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को उन्होंने फ्रीक्वेंसी कम दी, उनको कहा कि ठीक है आप सुनाई देंगे, यू विल बी हर्ड, यू विल बी परसीव्ड बाय द ईयर. एंड कैरियर को कहा कि तुम बहुत दूर तक जा सकते हो, यू कैन गो टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक मीडियम वेव अलोंग द ग्राउंड, स्काई वेव, एंड सो मेनी. हाई फ्रीक्वेंसी it cannot perceive, it cannot perceive by our ear. So what we do, हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं. That is what is called modulation. And when we superimpose this audio signal on the carrier in amplitude modulation, it becomes like this green one. It is called amplitude modulation. And similarly, when we take frequency modulation, where in the amplitude modulation, we change the amplitude of the carrier with respect to amplitude of the modulating signal. And in the frequency modulation, we change the frequency of the carrier with respect to, again, amplitude of the modulating signal. ये definition, ये चीज लोग बाग normally बच्चे confuse हो जाते हैं. So this is very important, that in one case we change the amplitude with respect to amplitude of the modulating signal, and in second case we change the carrier frequency of the carrier again with respect to amplitude of the modulator. In both the cases we refer amplitude of the modulating signal. आप देख सकते हैं carrier का amplitude यहाँ constant है,
Amplitude modulation में this amplitude is changing, and in frequency modulation you can see that amplitude remains the same, but when the amplitude is of the modulating signal goes up, the frequency becomes more, but when it comes down, the frequency becomes less. So this spring action, it goes on compressing, removing. So this type of modulation is called frequency modulation. अभी जब हम डिजिटल में आएंगे तब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, क्योंकि वहां पर भी वही बात है. But anyway, that I will take slightly later. Well, ये आपको दो चार हम दिखाना चाहते थे about our transmitter all India radio के. These are the medium wave transmitters. They are very big. We have got right up to 20 kilowatts से लेकर के megawatt तक है. और medium wave, as you know, again I will not go into the detail, but you all know that medium wave travels along the ground. Medium wave travels along the ground. और हमारे यहाँ करीब more than 145 medium wave transmitters हैं. और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा कि मीडियम वेव जो मास्ट होता है ना, you can see this mast, and the interesting thing is that this mast is not touching the ground. Please note, this mast is not touching the ground. आप कहेंगे साहब अगर मास्ट टच नहीं कर रहा है तो फिर ये टिका हुआ कैसे है? Yes, this mast is put on a insulator. You all know what is an insulator. लेकिन इंसुलेटर पर सिर्फ इसको हम रखते हैं, इसको फिक्स नहीं करते हैं. तो फिर ये क्या कैसे टिकेगा? आप देखिए इस पिक्चर को, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये वायर्स दिखाई देंगे, गाई वायर्स कहते हैं इसको. ये 3 डायरेक्शन में होते हैं और कई स्टेजेस पर होते हैं, और इन वायर्स को बांध करके और इससे ये मास्ट, सो दिस वर्टिकल मास्ट टेक्निकली इज फ्लोटिंग इन द एयर. इट इज फ्लोटिंग इन द एयर, और जब इससे वेव्स निकलती है इट ट्रेवल्स अलोंग द ग्राउंड. और शॉर्ट वेव में वी ऑल नो दैट गोज अप इन द एयर. फिर वहां पर आपका आयनोस्फीयर है, और ये आयनोस्फीयर हमारी बहुत मदद करता है, हमको बचाता है. ऊपर से कुछ भी चीजें आती हैं, आयनोस्फीयर विल सेव अस. और ये जो वेव्स जब जहां जाती हैं, व्हेन द वेव्स स्ट्राइक द आयनोस्फीयर, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के और नीचे आ जाती है वापस. तो नेचुरली हम कैरियर में अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डाल देंगे, उसको ऊपर भेजेंगे और फिर वो नीचे आएगा. जहां आएगा उसको फिर हम डीमॉड्यूलेशन कर लेते हैं. यू कैन सी दैट. लेकिन ये जो लेयर है, शॉर्ट वेव लेयर्स, ये बड़ी अनसेटिस्फैक्टरी टाइप वर्क करती हैं, क्योंकि आयनोस्फीयर जो है वो सूर्य की गर्मी से, सन से अनस्टेबल हो जाता है. अच्छा, यहाँ पर एंटीना, वहां तो वर्टिकल था, इट गोज अप. तो हमारा जो एंटीना है ये हॉरिजॉन्टल रहता है. ये देखिए, ये इसका एंटीना है. एंड अगेन दिस एंटीना इज फ्लोटिंग इन द एयर. यहाँ पर ये टावर जरूर ग्राउंड को टच कर रही है, but between the antenna and the tower there is a insulator. So anyway, this is just in short I am giving you what is medium wave antenna and what is short wave antenna. And then of course FM, again it is the most important thing of FM is that it travels along in the line of sight. ये जैसे हमारे शिव भगवान की आंख होती है ना, तीसरी आंख एकदम सीधे दिखाई देगा, ऐसे ही ये जो सिग्नल है ये बिल्कुल सीधा जाता है. और जब सिग्नल सीधा जाएगा तो रास्ते में अगर कोई चीज आ गई तो आपका सिग्नल रुक जाएगा. इसीलिए क्या करते हैं, एफएम का जो एंटीना होता है उसको हम ऊंचाई पर लगाते हैं. यू नो इट व्हाई? बिकॉज इसीलिए पीतमपुरा में जो टीवी टावर्स हैं उसके ऊपर हमारे एफएम के एंटीना लगे हुए हैं. क्यों? दूर से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं. अगर नीचे लगाएंगे तो वो आप ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे. तो इसलिए एफएम जो है, एफएम की रेंज ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट वेव एंड मीडियम वेव, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होती है. और ये इसको ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि इसको ऊंचाई पर लगाया जाए. वी ऑलवेज गिव ए हाइट टू द FM antenna. Then of course satellite. This was again a great revolution. I don't know आप लोगों को कितना पढ़ाया गया है satellite broadcasting, but this is again
ए थिंग, ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेंशन जो हुआ था ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, वो था कौन सा? व्हील। आपको मालूम होगा, व्हील जो था वो पहला ऐसा इन्वेंशन था जिसने मानव जाति को पूरा चेंज कर दिया। इट चेंज द ह्यूमन मैनकाइंड। ऑफ कोर्स उसके बाद में बहुत सारे इन्वेंशन हुए, लेकिन व्हील वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। इसको अगर आपको रियलाइज करना है, आज की डेट में आप समझ लीजिए कि व्हील है ही नहीं, व्हील था ही नहीं, तो हम कहाँ रह जाएंगे? वी आर स्टैंड स्टिल माय डियर। न ट्रेन चलेगी, न गाड़ी चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। सो व्हील वाज द बिगेस्ट इन्वेंशन। और ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि व्हील के बाद दूसरा जो बड़ा इन्वेंशन हुआ है, हालांकि हजारों इन्वेंशन हुए हैं उसके बाद बहुत सारे हुए हैं, स्टीम इंजन, ये वो, लेकिन व्हील के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ है, या कहते हैं लोग कि बड़ा इन्वेंशन है, वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसने पूरी हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ब्रॉडकास्टिंग में भी सैटेलाइट काम आता है, बड़ा आसान है। ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, यहाँ से सिग्नल को हम सीधे सैटेलाइट पे भेजते हैं। सैटेलाइट उसको रिसीव करके थोड़ा सा प्रोसेस कर लेता है और फिर इसको दोबारा नीचे भेजते हैं, और इससे हम पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं। आई होप कि सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग आपको डिटेल में पढ़ाया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया गया है तो मेरा सजेशन ये है कि सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि आप आगे आपके फ्यूचर में, क्योंकि मैं बहुत से इंटरव्यूज में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड गाइड भी कर रहा हूँ कि सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग आजकल हर जगह काम आती है और हर जगह पूछी नहीं जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, अगेन आप सबको पता है, इंटरनेट रेडियो। लेकिन इंटरनेट कैसे काम करता है ये आई डोंट नो आप में से कितने लोग, ये अलग एक सब्जेक्ट है जो मैं अभी यहाँ पर भी आई विल नॉट डिस्कस इट हियर, बट देन इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बार जब आपने कोई लेटर लिखा और अपने कंप्यूटर में उसको टिक कर दिया, और वो लेटर जो है आपका हजारों लाखों किलोमीटर टिम्बकटू में पहुंच गया, कभी आपने सोचा है कि बीच में होता क्या है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इस कहानी को कभी लिखिए, क्योंकि आप लोग तो मीडिया के लोग हैं ना। आप एक स्टोरी बनाइए कि बेचारा हमारे जो 4 लाइनें या एक लेटर, एक पेज जो निकला हमारे लैपटॉप से, वो वहां पहुंच गया ऑलमोस्ट इन रियल टाइम, नॉट रियल टाइम, मे बी ऑलमोस्ट रियल टाइम। तो यार बीच में उसने कहाँ धक्के खाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऊपर गया नीचे आया, किधर गया, आप इसकी अगर स्टोरी एक लिखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, राइट? तो एनीवे my dear, I have discussed the traditional radio broadcasting. Yeah, if I say I have discussed the broadcast media or broadcasting in analog domain, right? Now we will come to digital domain. और इसीलिए जो अविनाश जी ने टॉपिक जो दिया है डिजिटलाइजेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इस पर मैं थोड़ा टाइम देना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज द रूट कॉज। मतलब ये अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको आगे ब्रॉडकास्ट मीडिया पूरा समझ में आ जाएगा डिजिटल डोमेन में। एंड आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। नॉर्मली अगर ये फेस टू फेस क्लास होती या अभी मेरे पास टाइम होता, तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है जो लिखा हुआ है नंबर 3 पर, व्हाट डिजिटल रियली मीन्स टू यू। ये जो डिजिटल वर्ड है ना, ये आप इससे समझते क्या है, ये है क्या चीज? एंड आई टेल यू, मैंने बहुतों से ये पूछा है, कम से कम 400-500 लोगों को छोटे वाले पेपर दे दिए कि भैया इसमें आप ये इस तरह के पेपर में 4 लाइनें लिख दो, 2 या 2 ही लाइनें लिख दो कि डिजिटल है किस चिड़िया का नाम, ये है क्या चीज? एंड आई टेल यू, आई मीन आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। व्हाट डिजिटल रियली मीन्स टू यू। और जब मैंने, और ये जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, व्हाट आई विल शो यू, दीज आर नॉट माय आंसर्स माय डियर, दीज आर द आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक यू। वो ज्यादातर डीयू के स्टूडेंट्स हैं जहां मैं पढ़ाता हूँ, और दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने ले करके, खैर वो तो
400-500 थे, उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। अब ये आंसर देखिए, एंड आई टेल यू, आप लोग अभी इस समय जो भी हैं 100 के आसपास होंगे करीब, अगर मैं सबसे बोलूं कि भैया डिजिटल के मतलब क्या है तुम्हारा, और हर आदमी लिखे कि डिजिटल से क्या मतलब है, आई टेल यू इट विल बी ऑल डिफरेंट आंसर्स। चलिए देखते हैं। So I circulated this question to students, and some of the answers, not all करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी. Some of the answers received by me are like this. Digital is a technology which can do things faster. किसी बच्चे ने ये जवाब दिया. Digital is a medium which generates, stores and process data. इसमें इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड चीजें डाल दी, डेटा वगैरह. डिजिटल इज ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग. ये तो बड़ा पॉलिटिकल आंसर है कि इट इज ए न्यू वे. जब कोई वे समझ में नहीं आया तो उसको नया वे बना दीजिए. डिजिटल इज यूजुअली रेफर्स टू समथिंग यूजिंग डिजिट्स, पर्टिकुलरली बाइनरी डिजिट. ना यहाँ पर एक वर्ड ले आए बाइनरी. मैं बाइनरी वगैरह नहीं जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्लास एनी दिस बाइनरी वर्ड, क्योंकि फिर उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि मीडिया वालों ने नहीं पढ़ा है, मुझे मालूम है. डिजिटल इज अनदर नेम फॉर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट. बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है. ये सब डिजिटल के आंसर है. व्हाट इज डिजिटल, व्हाट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड. डिजिटल रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कन्वेड वाया 0 and 1 bits. I don't know. Scientifically it is binary form of storing information. Again हमारे आंसर को और कॉम्प्लिकेटेड बना देना. डिजिटल वर्ड विच कनेक्ट्स ह्यूमन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो यहाँ आप डिजिटल वर्ड तो फिर से ले आए. डिजिटल मीडिया इज ए डिफरेंट वर्ड विच कनेक्ट्स ह्यूमन टू द डिजिटल बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी. Digital means showing information by using numbers. Digital means more work in less time. Anything that is on internet. Digital shows modern technology of work. Digital means anything which uses an electronic medium to interact, particularly any form of computing device. It ranges from social media to cashless transaction or digital payment. Digital normally refers to the way of services we accept just for convenience. I don't know. Digital means transparency in service. So I don't know. There may be some more. Digital is the new way, virtual word, to convert hard copy to soft copy. Very good. To bring up things on online mode. To convert data in bits and bytes. To convert data to such a form that it becomes easy to carry and store. टीवी, कंप्यूटर, यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सब डिजिटल है. ठीक है तो सही. और कुछ डेफिनेशन मैंने गूगल से लिया. आई कलेक्टेड, ये तो स्टूडेंट्स की डेफिनेशन थी. सम आई कलेक्टेड फ्रॉम गूगल. क्या क्या थी साहब? फॉर सम एग्जीक्यूटिव्स इट इज अबाउट टेक्नोलॉजी. For others, digital is a new way of engaging with customers. Very good. And for others, still, it represents an entirely new way of doing business. Now, please note that none of these definition is necessarily incorrect. ये गलत नहीं है. जो भी लोगों ने कहा है वो किसी न किसी रूप में, in some way or other, they are correct. और गूगल ने थोड़ा सा पॉलिश वे में इसको बता दिया है. लेकिन मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं आ रही है. मेरा क्वेश्चन वही रहता है, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल. So when I ask many people this question, why not I ask this question to myself? मैंने भी आंसर दिया. Now just see my answer. Digital is a wonderful magic of two characters. My dear, digital is a wonderful magic of two characters, and we will dwell upon it. हम इसको डिस्कस करेंगे. एंड अल्टीमेटली इवनिंग में जब आप अपने घर जाएं, आप अपनी ग्रैंड मदर को
चाची को, किसी को ये समझा सके कि डिजिटल क्या होता है, that will be, then I will be happy that you have understood digital. So I say it is a wonderful magic of two characters. Why it is magical character? We will see that. Two magical characters. Now, two magical characters means कोई भी दो चीजें. The magic of these two characters is so powerful that any data, document, information in physical or analog form may be represented in digital format by using these two magical characters. वैसे मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में इतनी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जर्मन, ये वगैरह वगैरह, आपने कोई ऐसी लैंग्वेज सुनी है जिसमें सिर्फ दो कैरेक्टर, दो अल्फाबेट्स होते हो? सिर्फ दो. और इस दो अल्फाबेट से आप दुनिया की सारी लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप दुनिया के सारे नंबर्स लिख सकते हैं, चाहे वो चाइनीज हो, जर्मन हो, जापानीज हो, कुछ भी हो, आप इस दो कैरेक्टर से, सिर्फ ये दो कैरेक्टर, इसलिए मैंने कहा कि ये मैजिकल कैरेक्टर है. दिस इज अ मैजिकल कैरेक्टर, और इससे आप सब कुछ कर सकते हैं. दैट वी विल सी. आप मैजिक कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं नॉर्मली लोगों को एक डिजिटल बाबा की कहानी भी छोटी सी सुना देता हूँ, हालांकि इट मे टेक अबाउट ए मिनट. तो वो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल जो है किस जादू का नाम है. लोग इससे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे धोखा देते हैं. एक गांव में कोई बाबा आए, उन्होंने नदी के किनारे अपना आश्रम लगा लिया, और वो बाबा पूरे आसपास के 50 गांवों में पॉपुलर हो गए. क्यों पॉपुलर हो गए? कि साहब बाबा बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन खास बात यह है कि अगर जो लेडी फैमिली वे में है, यानी प्रेग्नेंट है, तो बाबा के पास जाइए, आप हाथ जोड़िए, पैर छूइए, और बाबा आपको बता देंगे कि लड़का होगा या लड़की होगा. अब नेचुरली लेडीज को तो ये क्यूरियोसिटी रहती है. अब आजकल अब बात अलग है कि वो मेडिकल चीजें, लेकिन वो भी बैन है. तो लोग बात जाने लगे गाँव में, और बाबा जो है वो बताने लगे लोगों को. अब बाबा की ट्रिक देखिए. बाबा क्या करते थे कि कोई भी आता था, उस उन्होंने अपना एक चेला रखा था, उसके पास में एक मोटा रजिस्टर था, उसमें वो डेट, नाम, उसका मोबाइल नंबर और लिखते थे कि उसने क्या पूछा और बाबा ने क्या जवाब दिया, ये उसमें लिखा जाता था. राइट. अब बाबा असल में करते क्या थे, उन्होंने अपने चेले को बता रखा था कि बेटा मैं किसी को जो भी आंसर दूं, और आंसर क्या होगा, अगेन यहां भी दो ही कैरेक्टर हैं, दो ही कैरेक्टर हैं, लड़का या लड़की. तो बाबा ने कह रखा था चेले को कि बेटा अगर मैं लड़का बोलूं किसी को, तो तू रजिस्टर में लड़की लिखना, और अगर किसी को मैं लड़की बोलूं तो रजिस्टर में लड़का लिखना. ये ट्रिक थी, बड़ी सिंपल ट्रिक थी, यही मैजिक था. अब क्या हुआ कि जिनको बाबा ने बताया, तो जो सिंपल मैथमेटिक्स से होता है कि करीब 50% लोगों के तो आंसर सही हो गए होंगे, और जिनके सही हो गए वो लोग मिठाई लेके आए और उसका कहा ठीक है. लेकिन एक आध को कहा, जिसको कहा था उसको लड़का चाहिए था लेकिन लड़की हो गई, और वो बिल्कुल लाठी वाठी लेकर के लोगों को, बाबा को मारने आ गया. बाबा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आओ तुम बैठो, पहले तुम किस तारीख को आए थे. उसने डेट बताई, चेले को बुलाया, रजिस्टर निकाला, कहा कि ये तुम्हारा नाम है, हाँ. ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है, हाँ. देखो मैंने क्या लिखा है. अब बाबा ने बताया था उसको लड़की, लड़का, लेकिन हुई लड़की, लेकिन रजिस्टर में क्या लिखा, जो बताया उसका उल्टा. तो उसने सोचा कि यार बाबा ने तो सही बताया होगा, मेरे ही दिमाग में लड़का लड़का घूम रहा था. तो वो भी खुश होकर चला गया. नाउ दिस वे बाबा हैज मैनिपुलेटेड ऑल द आंसर्स. जो सही हो गए वो सही है, जो नहीं हो वो भी सही है. एनीवे दिस वाज जस्ट, इसमें जो बॉटम ऑफ द, आई मीन जो मेन लाइन है, बॉटम लाइन, वो ये है कि देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स एंड वी डू ओनली मैनिपुलेशन. पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ मैनिपुलेशन पर बेस्ड है, और मैनिपुलेशन इस हद तक है कि आप दंग रह जाएंगे इसके बारे में, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको डिजिटल में. मैजिक ऑफ डिजिटाइज इंफॉर्मेशन.
दिस अब जब ये जो इंफॉर्मेशन हम ये दो मैजिक कैरेक्टर से लिखते हैं, डिजिटाइज इंफॉर्मेशन may be exchanged through digital network, thus making all the services accessible to citizens in digitized format and through digital networks when previously accessible in physical or analog form. जो पहले फिजिकल या एनालॉग फॉर्म में हम एक्सेस करते थे, उसको अब हम डिजिटल नेटवर्क से डिजिटाइज फॉर्म में एक्सेस करते हैं। अब सवाल ये आता है, अभी तो आपको मैंने सब डिजिटल बता दिया, लेकिन सही आपने बता तो दिया, लेकिन आखिर ये दो कैरेक्टर, दो मैजिकल कैरेक्टर, इसको हम लिखेंगे कैसे? यहां मैं एक चीज बता दूं, आप लोग ये जो 1 और 0 लिखते हैं ना सब लोग 1 0 डिजिटल को क्या करके, ये असल में मैथमेटिक्स वाला 1 0 नहीं है। ये प्लीज, बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये मैथमेटिक्स, नो, ये मैथमेटिक्स वाला 1 0 नहीं है, ये सिर्फ दो कैरेक्टर हैं। इसके जगह आप राम और श्याम लिख सकते हैं, इसके जगह पी और क्यू लिख सकते हैं, इसके जगह कुछ भी, दो कैरेक्टर लिख दीजिए, बस दो चीजें लिख दीजिए, ए और बी लिख दीजिए। तो अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? तो पहला चैलेंज तो ये था कि इसको रिप्रेजेंट करना है, और मैं ये बाइनरी नंबर वगैरह यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चे जो है, हम लोग ये बाइनरी वगैरह पढ़ने लगेंगे तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई अडॉप्टेड डिफरेंट मेथोडोलॉजी। अब जैसा मैंने बताया, आई टोल्ड यू कि these two magical characters are represented by anything which has got only 2 positions। और सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? आपका स्विच। नॉर्मली स्विच में क्या होता है? ऑन और ऑफ। तो इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस विल बी वन स्विच विल रिप्रेजेंट द डिजिटल। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो होते हैं, वो यही स्विचेस ही आते हैं बाद में। ये जो आपकी चिप्स बनती है ना, आईसी चिप्स वगैरह, इसमें जो जो स्विचेस होते हैं, वो ये तो फिजिकल स्विच मैंने दिखाया है, लेकिन वो आईसीज में इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, लेकिन होते स्विचेस हैं, होते ऑन और ऑफ ही है वहां पर। तो ये जो दो कैरेक्टर, अब हमारी जो प्रॉब्लम थी, ये जो दो कैरेक्टर हैं, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाय 2 क्लियर स्टेटस, ऑन और ऑफ। या जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच है, तो इसमें ले लिया आपने दो कंडीशन, ऑन और ऑफ, तो दो कैरेक्टर आपके रिप्रेजेंट हो गए इलेक्ट्रिकल स्विच में। तो एक कैरेक्टर आपका ऑन रहेगा और दूसरा ऑफ रहेगा, जब स्विच ऑन रहेगा दूसरा ऑफ रहेगा। तो ये जो दो कैरेक्टर है राम और श्याम, उसको हमने कह दिया कि भाई एक का नाम ऑन है, एक का नाम ऑफ है। अब ये चलेगा हमारा। या अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, तो ये बहुत ही आसान है, हमने लैंप ले लिया। अब लैंप में भी दो ही चीजें होती हैं, या तो लैंप जलेगा या बुझेगा, ऑन या ऑफ। तो हमने कह दिया भाई एक कैरेक्टर जो है वो ऑन कहलाए, ऑन जो लैंप है वो एक कैरेक्टर कहलाएगा, और ऑफ जो है वो दूसरा कैरेक्टर। तो इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दे दिया, दिस 1 and 0 और नॉट, अच्छा ये तो बता दिया मैंने। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जब हम इसको कहते हैं कि भाई लैंप ऑफ है, तो इसको हम कहते हैं कि इसको बजाय ऑफ वगैरह लिखने के, हम यहाँ पर या तो नो लिख देते हैं या ये 0। लेकिन प्लीज, ये जो 0 है, ये मैथमेटिक्स अर्थमेटिक वाला 0 नहीं है। और जब लैंप ऑन है, तो इसको हम कहते हैं 1। आप में से कोई कह सकता है नहीं सर मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं तो उल्टा मानूंगा। भाई मान लीजिए, आप जब लैंप ऑफ है तो आप उसको 1 कर दीजिए, अब लैंप ऑन और तो, लेकिन भाई जब पूरी दुनिया में जब कोई चीज मानी जाती है, तो आखिर स्टैंडर्ड तो बनाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जो एक आदमी मानेगा, फिर वो सब लोग माने, ISI स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं। बट यहां पर एक सवाल आता है दिमाग में कि why only 2 characters, why not more characters? अच्छी बात है, क्योंकि जब आप 2 कैरेक्टर से इतना जादू कर सकते हैं, तो ज्यादा कैरेक्टर से तो और भी ज्यादा जादू कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने 2 कैरेक्टर क्यों लिए? व्हाई वी हैव सेलेक्टेड ओनली 2 कैरेक्टर इज they can be electronically manipulated।
मतलब उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, नंबर 1। उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, चाहे पेन ड्राइव में चाहे हार्ड ड्राइव में उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको रीजनरेट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बहुत हाई स्पीड पर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिजिटल जो है वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर ऑलमोस्ट रियल टाइम में जाता है। तो इस कारण से हमने, क्योंकि ये सवाल भी उठता है कि व्हाई वी सिलेक्टेड ओनली 2 कैरेक्टर्स, बिकॉज दे कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली मैनिपुलेटेड, प्रिजर्व्ड एंड जनरेटेड एट वेरी हाई स्पीड। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने ये कहा था कि हम दुनिया की हर चीज को, हर लैंग्वेज को, हर गाने को, हर पिक्चर को, हर म्यूजिक को, हर वीडियो को हम ये 2 कैरेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खास बात है, सिर्फ 2 कैरेक्टर, और इससे सारा रिवॉल्यूशन आ गया। और जो अगर ब्रॉडकास्ट मीडिया लिया जाए तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या क्या होता है, अगर हम एलिमेंट्स उसके कहें, भाई या तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में नंबर्स होंगे या अल्फाबेट्स होंगे, ऑडियो होगा, पिक्चर होगी, म्यूजिक होगी, वीडियो होगी। मेरे ख्याल से यही होते हैं। एक आध और भी कोई होता होगा तो उसको भी लिख लीजिए आप। अब all the elements of the broadcast media can be converted into digital. Now when I say digital, मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं। When I say digital means by those 2 मैजिकल कैरेक्टर। यहां पर डिजिटल का मतलब है those 2 मैजिकल कैरेक्टर सब चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अब हम ये देख लेते हैं। और अगर आप एक बार इसको समझ गए, फिर हमारी आगे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कुछ नंबर है लेफ्ट साइड में, 12 + 5 या कोई भी मैथमेटिकल, ये अर्थमेटिक है, ये मैथमेटिक्स वाला नंबर है। इसको जब हम ये 2 कैरेक्टर से लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कुछ 1 0 1 0, लेकिन 2 ही कैरेक्टर आएंगे, तीसरी कोई चीज नहीं आएगी। आप ये देखिए, इसी तरह से मान लीजिए कोई अल्फाबेट्स है, कोई आपने किताब लिखी बंगाली में या अल्फाबेट्स या किसी में भी लिखी, लेकिन जब आप उसको इन 2 कैरेक्टर से लिखेंगे तब भी यही चीज आएगी, 1 या 0 ही आएंगे। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, वो आवाज है, उसको जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको जब आप डिजिटल उसमें 2 कैरेक्टर से लिख रहे हैं, तब भी यही आएगी। अगर कोई पिक्चर आप खींचते हैं, यानी कि आप डिजिटल कैमरा से आप लोग जो फोटोग्राफी करते हैं, तो फोटो तो आ जाता है, लेकिन वो कैमरे के अंदर किस रूप में जाएगा, इन व्हाट फॉर्म इट विल गो इन द कैमरा, इट विल गो इन दीज फॉर्म्स ओनली। और अगर कोई म्यूजिक है तो वो म्यूजिक भी इसी फॉर्म में जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये कैसे होता है, हम अभी डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसी इंटरेस्टिंग चीज। ये सारी चीजें अलग अलग तरीके की हैं, यानी कि एनालॉग डोमेन में या आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ना तो कोई अल्फाबेट्स नंबर से जुड़े हैं, ना नो अल्फाबेट्स स्पीच से जुड़ा है, ना पिक्चर। ये सारी चीजें अलग अलग है, और अभी तक हम लोग इन चीजों को अलग से ही ट्रीट करते थे, और उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। रिकॉर्डिंग हम लोग टेप पर करते थे, उसको अल्फाबेट्स को अलग तरीके से लिखते थे, टाइपिंग करते थे। लेकिन जब हम उसको 2 कैरेक्टर से या डिजिटल फॉर्म में लिख देते हैं, तो नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि साहब यहां पर तो बस और कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां सिवाय ये 1 और 0। बट अगेन ये मैथमेटिकल 1 0 नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ ये 2 कैरेक्टर से लिखी गई हैं। अब देखिए कितना वंडरफुल चीज है ये, कि पूरी दुनिया की सारी चीजें हमने ये 1 और 0 यानी कि 2 कैरेक्टर से लिख दी। अब हमारी जो प्रॉब्लम है, अब हमें जो कुछ करना है, अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना है, वो सिर्फ इसको ही हैंडल करना है। अगर हमने इसको हैंडल कर लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी आप कहेंगे सर आपने ये लिख तो दिया ऐसे, ये एक्चुअल में कैसे होता है? यस, आई विल टेल यू, यू शुड नो, यू हैव टू नो, क्योंकि यही तो चीजें होती हैं। अगर ब्रॉडकास्ट मीडिया की हमने सारी चीजें इस तरीके से कन्वर्ट कर ली, तो ये जो हमारी हेडिंग लिखी है ना आज के मास्टर क्लास की, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन यानी कि
बकरे को काट काट के कीमा बना दिया, छोटे छोटे पीसेस बना दिए, डिजिटलाइज कर दिया। तो यहां पर भी इन सब चीजों को काट पीट करके अभी हम देखते हैं, इसको हमने एक ही फॉर्म में बना दिया। लो भाई, ये सब एक ही फॉर्म में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने लैंप को कह दिया कि भाई जब ऑफ होगा तो ये 0 मान लेंगे, जब ऑन होगा तो 1 मान लेंगे। मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे इस बात पे। अब मान लीजिए 2 लैंप हैं, कहीं दूर खड़े हैं 2 लैंप, और उससे हमको कुछ नंबर कन्वे करने हैं। ठीक है, अब 2 लैंप का मतलब हर लैंप की 2 स्टेटस है, या तो वो ऑन होगा और या वो ऑफ होगा। अब हम ये कहते हैं कि जब लैंप ऑफ है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 0। लेकिन ये 0 मैथमेटिक्स वाला नहीं है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं। यानी कि जब दोनों लैंप को हमने ऑन ऑफ रखा तो हमने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि भैया दोनों लैंप जब ऑफ है तो तुम इसको अर्थमेटिक वाला 0 मान लेना। अर्थमेटिक वाला, ये अर्थमेटिक वाले नंबर है, ये 0 और ये 0 में फर्क है। ये तो कैरेक्टर है लेकिन ये एक्चुअल नंबर है। और फिर हमने कहा कि भाई राइट हैंड साइड वाला लैंप जो है वो ऑन है और लेफ्ट हैंड साइड वाला लैंप जो है वो ऑफ है। तो कहा भैया अगर राइट वाला ऑन है लेफ्ट वाला ऑफ है तो इसको तुम अर्थमेटिक का 1 मान लेना, राइट। और अगर लेफ्ट वाला ऑन है और राइट वाला ऑफ है तो इसको 2 मान लेना। ठीक है, और अगर दोनों ऑन है तो इसको 3 मान लेना। अब मान लीजिए किसी समुद्र के किनारे स्मगलिंग वाले हैं, उनका कोई जहाज आने वाला है, वो सोना वोना लेकर, कॉन्ट्राबैंड गुड्स लेकर के, और वो कहता है कि भाई अब जब तक एक नंबर तुम्हें कन्वे नहीं करेंगे तुम किनारे पर मत जाना। और वो नंबर होता है 312। अब ये किनारे वाले लोग उसको ये नंबर कन्वे कैसे करें? उनके पास 2 लैंप है, तो वो क्या करेंगे? पहले दोनों लैंप को वो ऑन करेंगे। ठीक, दोनों लैंप को ऑन करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये कौन सा नंबर है, 3 है। फिर वो राइट वाले को ऑन करेंगे, लेफ्ट वाले को ऑफ करेंगे तो 1 है। और फिर लेफ्ट वाले को ऑन करेंगे, राइट वाले को ऑफ करेंगे तो ये 2। मतलब उन्होंने लैंप की मदद से वो नंबर कन्वे कर दिया और वो लोग आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कन्वे द नंबर। वेरी गुड। तो आई कांट रीड, आप लोग को दिखाई देता है ये नीचे लिखा हुआ? हेलो? जी सर, जी सर। मेरे को नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, तो अब मैं आपको नॉर्मली मैं ये एक्सरसाइज क्लास में करवाता हूँ, लेकिन चलो बच्चों को पूछता हूँ ये कि मान लीजिए मैं 2 लैंप के जगह 3 लैंप देता हूँ आपको। ठीक है, तो वहां पर तो 2 लैंप की मदद से मैंने कितने नंबर ट्रांसमिट किए थे? 2 लैंप की मदद से मैंने कितने अर्थमेटिक के नंबर ट्रांसमिट किए थे? कर सकता था, मतलब 4 नंबर, 0 1 2 3, 4 नंबर हो गए ना ये। अब मैं अगर लैंप 3 कर दूं तो मैं कितने नंबर ट्रांसमिट कर सकता हूं? आई थिंक आई विल डिमांड एन आंसर फ्रॉम एनी स्टूडेंट। अगर 3 लैंप देता हूं तो कितने नंबर ट्रांसमिट कर सकते हो? कोई भी बोल दो। आई थिंक अभिषेक एंड नंदिनी यू बोथ कैन रिस्पॉन्ड। बोलो, अगर 3 लैंप देता हूं तो कितने नंबर ट्रांसमिट कर सकते हो? कितने नंबर का ऑप्शन बना सकते हो? यार डोंट इट्स ओके अभिषेक एंड नंदिनी यू कैन आंसर। सर आई गेस लैंप पे डिपेंड करेगा वो तो कि कितने नंबर बनेंगे। सो हाँ, तो कितने बनेंगे? बनाओ ना, बोलो बोलो। गुड गुड। मुझे भैया Sir, I have got this one answer in the chat box and it says 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, ये तो तुमने यार और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मेरे सर के ऊपर से निकल गई। लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वास्तव में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ यार ये तो बच्चों को पता होगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब चलो वो ये कहते हैं साहब करके देखना पड़ेगा, हालांकि मैं वो बता दूंगा, अब करके देखते हैं। चलो बेस्ट ये है, हम करके देखते हैं।
3 लैंप ले लिए साहब, ये 1 2 और ये 3, और यहाँ मैंने अर्थमेटिक के नंबर लिखे हैं। अब हमने फिर डिसाइड कर लिया आपस में कि भैया जब तीनों लैंप ऑफ है तो इसको आप 0 मान लेना, ठीक। और अभी हम इस लैंप को, पहले वाले लैंप को ऑफ ही रखेंगे, इसको हम ऑन नहीं करेंगे। और ये अब 2 लैंप जैसे पहले किए थे वो उसको उस हिसाब से चेंज करते हैं। देखिए इसको ऑफ रखा है, इसको पहले 0, ये इसको ऑन कर दिया तो ये 1 हो गया, ये ऑन किया ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहां तक तो ये 2 लैंप वाली बात हो गई, ठीक है। अब हमने इस लैंप को भी ऑन कर दिया, अब चेंज हो गया, और इन दोनों को ऑफ रखा 4, फिर यहां चेंज किया इसके ऑन के साथ 5, फिर 6 7। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसमें आप कोई भी और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? नो सर। नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने कोई और कॉम्बिनेशन बना लिया तो डिजिटल टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि डिजिटल में जब आप लोग अपना कोई नया अकाउंट गूगल पे या हॉटमेल में या उसमें खोलते हैं तो कई बार वो कहता है ना कि साहब ये तो ऑलरेडी है, फिर वो सजेस्ट करता है कि आप ये वाला कर लो, है ना। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको जो कॉम्बिनेशन, आपके नाम का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी दुनिया में किसी और का नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो मुझे कम से कम 15-20 बार उन्होंने कहा सॉरी सर दिस इज बुक आर.के. सिंह, ये आर.के. सिंह 1, आर.के. सिंह 2, आर.के. सिंह फलाना, नहीं होता गया। करते 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 जब मैंने कहा आर.के. सिंह 111 तो उसने हाँ साहब ये वाला खाली है, बुक करा लो। तो मैंने वो बुक करा लिया। इसी तरह से आप लोगों के भी जितने नाम होते हैं आप देखिए वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हर नंबर के लिए जो जो कॉम्बिनेशन है ये डिजिटल में कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं बदलता है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि रिपीट होगा तो फिर सारा डिजिटल फेल हो जाएगा। अब ये देखिए कि 3 लैंप लेने से हमने कितने नंबर लिख लिए बताओ? सर 7 नहीं भैया, अर्थमेटिक। जीरो भी खतरनाक नंबर होता है। 8 8 हो गए ना, 7 + 0। तो अगर 3 लैंप है हमारे पास तो हम 8 नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ए यूनिक वे। यू गेट माई पॉइंट? ये 8 नंबरों को हम 3 लैंप की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक को एक हमने ठप्पा दे दिया कि भैया तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। जैसे हाउस नंबर होते हैं ना, हाउस नंबर 41253, हाउस नंबर T111। तो ये इस तरह से ये नंबर यूनिक नंबर दे दिया हमने 3 लैंप की मदद से, ठीक है। अब अगर मैं 4 लैंप दे दूं तो कितने नंबर रिप्रेजेंट करोगे? सर 5। 4 लैंप 5 क्यों? सर 0 भी तो फिर तो आप कहोगे सब शाम तक आप यही करवाते रहोगे, लैंप बढ़ाते रहोगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, आगे से याद रखना। अब मैं आपको डिजिटाइज करता हूँ। देखो, आपने नाम सुना है, इसका नाम सुना है, ये बताओ। नो सर। अरे क्यों, बिट का नाम नहीं सुना है तुमने डिजिटल में? डोंट टेल मी यार। यस सर, सुना है, सुना है। आई मीन माय डियर, इट इज ए क्राइम अगर आप ये कहो कि आपने बिट का नाम नहीं सुना। केबीपीएस, किलो बिट्स पर सेकेंड, यस एमबीपीएस। सर, आई हैव। तो फिर आज एक मैडम सुबह एक कोई सेशन चल रहा था, वो डिजिटल डिवाइड के ऊपर बोल रही थी, अब मुझे नाम याद नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि मैडम आप जो गांव में और उसमें आप जो कहते हैं, डू दे रियली हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल? माय डियर, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा हाँ हाँ सर, सबको सब कुछ पता है। आई डाउट वेरी मच। और इसीलिए जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटलाइजेशन, कि आपको जब तक ये डिजिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा
जब तक आपको ये डिजिटल की पावर समझ में नहीं आएगी, इसका जादू समझ में नहीं आएगा, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। और इसको मैं मैथमेटिकल वे में, बाइनरी वे में नहीं समझा सकता, क्योंकि बाइनरी वगैरह हमने पढ़ी ही नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है। लेकिन आपको डिजिटल तो समझना है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा कहते हैं डिजिटल इंडिया, हमें डिजिटल इंडिया सब बात करते हैं, लेकिन आखिर डिजिटल है क्या, सबसे बड़ी दिक्कत है। एनीवे, तो अब यहां पर जो लैंप की वाली बात थी कि मैं कितने लैंप से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले जो 2 लैंप थे जिससे कि हमने 4 नंबर बनाए थे, अगर वो सिस्टम हम बिट सिस्टम कहते हैं। जो 3 लैंप थे उससे हमने जो सिस्टम बनाया उसको 3 बिट सिस्टम कहते हैं। जो 4 लैंप थे उससे जो हम सिस्टम बनाएंगे उसको 4 बिट सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे बिट सिस्टम बन जाते हैं। और आप देखिए, जब भी कोई कंप्यूटर या डिजिटल की चीज बनती है तो पहली चीज ये रहती है कि वो सिस्टम कितने बिट सिस्टम पर ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैं अपने मीडिया वालों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने दोस्त के पास जाओ जो कंप्यूटर में बड़ा हाई फाई पढ़ाई कर रहा है, आप जाके कहते हो यार मुझे भी बता दे, कहता नहीं तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम, ये बड़ी हाई फाई चीज है। अब आप दूसरी बार जब जाओ, खाली उससे धीरे से पूछ लेना, यार ये तुम्हारा सिस्टम कितने बिट सिस्टम पर काम कर रहा है। वो आपको पीछे मुड़ के देखेगा, भले ही आपको भी जवाब नहीं आता हो, वो पीछे मुड़ के देखेगा, कहेगा कुर्सी पर बैठ जाओ यार, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। क्योंकि अगर आपने ये सवाल पूछ लिया कि कितने बिट सिस्टम, इसका मतलब वही समझेगा कि इसको तो डिजिटल पूरा आता है, सब बहुत कुछ आता है। तो कोई भी सिस्टम होता है, नॉर्मली हमारे जो पहले लैपटॉप ये जो होते थे, या तो 8 बिट सिस्टम, अब आजकल 16 बिट सिस्टम भी आ रहा है, फिर कई चीजों में 32 बिट सिस्टम, 128 बिट सिस्टम। और इसमें नंबर कितने रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर 2 बिट है तो हमने रिप्रेजेंट किए थे 4, 3 बिट है 8, 4 बिट है 16। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2 टू द पावर n, ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, 2 टू द पावर n, जबकि n जो है वो नंबर ऑफ लैंप्स है, n जो है नंबर ऑफ लैंप्स है। तो 2 अगर लैंप है तो 2 टू द पावर 2, 3 लैंप है तो 2 टू द पावर 3, 4 लैंप है तो 2 टू द पावर 4, इतने वो बन जाएंगे। अब यहां पर मैं एक सवाल और पूछता हूं कि इस बिट को आप हमारे ये लैंप वाली कहानी से जोड़ सकते हो कहीं? कैन यू कोरिलेट दिस बिट सिस्टम विथ माय लैंप थ्योरी? ये लैंप की जो मैंने आपको कहानी बताई, अब यार लैंप कहना जरा अच्छा नहीं लगता, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताऊं, हालांकि वो चीज है। आप बता सकते हो कि ये लैंप और बिट में क्या रिलेशन है? एनीबॉडी? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट? I think the participants can chat, Yes. means write in the chat box as well. यस, चैट बॉक्स में लिखो कि लैंप और बिट में क्या क्या डिफरेंस है। कहाँ गया चैट बॉक्स में? जी सर, यहीं पर ही है। दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक बार बार नंदनी और अभिषेक को पकड़ना भी ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बच्चों, मैं तो चाहूंगा कि वो दूसरे Sir, बच्चे बताएं। bits and number of lamp directly proportional होंगे, I guess. नहीं, प्रमोशनली वो मैंने आपको एक चीज बताया, नहीं ठीक है, लेट अस वेस्ट सम टाइम ऑन दिस, ये जरूरी है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि कितना होगा 2 टू द पावर n, जबकि n जो है वो आपका नंबर ऑफ लैंप्स है। तो जब हमारे, अब आप देखिए n जो है नंबर ऑफ लैंप्स है, तो जब 2 लैंप थे तो कितने नंबर बने? 4। 3 लैंप थे 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब, 4 2 6 2 टू द पावर 4, 5 2 टू द पावर 5 यानी 32। इस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं जो आपकी चीज पूछना चाह रहा हूं कि लैंप और बिट में क्या रिलेशन है, कैन आई से कि एक लैंप जो है वो एक बिट है। नाउ आई एम मेकिंग ए स्टेटमेंट, एक लैंप जो है वो एक बिट है। कैसे? लैंप की क्या क्या वैल्यूज है? 2 वैल्यूज होती है ना लैंप की, क्या? एक तो ऑन या ऑफ, मतलब उसकी 2 स्टेटस है। इसी तरह से हर बिट के भी 2 वैल्यूज होती हैं, 2 उसके फेसेस होते हैं, एक 1 और एक 0। आप समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हर बिट के
दो चीजें हैं, ये सिक्का है एक तरह से, हेड और टेल। तो जैसे लैंप, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा एक लैंप जो है वो एक बिट के बराबर है, लेकिन लैंप की भी दो वैल्यूज है और बिट की भी दो वैल्यूज है। प्लीज इसको याद रखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बोलो। मतलब इसमें कोई ऐसी मैंने बहुत मुश्किल वाली बात नहीं बताई है कि एक लैंप एक बिट के बराबर है और एक बिट की दो वैल्यूज होती है। अब हम आते हैं तो नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9 तक कर लीजिए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। मतलब आपने अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 9 तक तो आप लिख सकते हैं। अगर 4 बिट ले लिया, अगर आपने 4 बिट ले लिया तो कितने ऑप्शन बन जाएंगे आपके पास? अगर आपने 4 बिट ले लिए तो कितने ऑप्शंस बन जाएंगे? 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गए ना। तो 16 में आप दे दीजिए हर एक नंबर को। अब हम आते हैं अल्फाबेट्स पे, ये ABCD को कैसे लिखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने तो कहा था साहब दुनिया की सारी लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं इस वर्ड। आप ये देखिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया की सारी चीजें ये दो कैरेक्टर से हम लिख रहे हैं, कैसे? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब देखते हैं कि ये तो आपका बड़ा फेमिलियर, आप सब जानते होंगे, सब लोग रोज काम करते हैं। ये आपके ये लैपटॉप का कीबोर्ड है कि नहीं, है ना? यस बोलो, सर। है ना? यस वही सर। ये मेरे सामने भी है और ये भी है, इसमें एस्केप की होती है, ये हो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आई थिंक अब आप नंदिनी यू देखिए, कैन आल्सो रिस्पॉन्ड। यस सर ये पूछ रहे प्लीज, हैं तो एक आध लोग बोलते रहो यार। नंदिनी, नंदिनी यू कैन आल्सो रिस्पॉन्ड। आई थिंक इट्स नंदिनी, नॉट द ओनली नंदिनी, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अभिषेक। हाँ, नहीं नंदिनी क्या मॉनिटर है क्लास की? हेड है, हेड होगी ना। सर आप कह सकते हैं सर। हाँ ठीक है, कह सकता हूँ, मैं मानता हूँ इनको हेड है ये, चलिए। तो अब ये हर एक चीज को रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम मान लीजिए RK सिंह मैंने लिखा, राइट, तो यहां तो मैं RK सिंह टाइप करूंगा, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में अंदर क्या जाएगा? वो सिर्फ 1 zeros ही जाएंगे। अब कैसे? यानी कि हर कीबोर्ड, हर चीज को हमने एक, हमें यूनिक नंबर देना है, यूनिक कॉम्बिनेशन। वो कैसे देते हैं ये देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड। नॉर्मली अगर 8 बिट सिस्टम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच की ऑन द बोर्ड। अगर हम 8 बिट सिस्टम है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 कितना हुआ? 2 टू दी पावर 16 हो गया, 2 टू दी पावर 4 16 को मल्टीप्लाई करो 256, ठीक है। आप लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर है। 256, ठीक है, 256 ऑप्शंस आ गए, बहुत है 256। अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टर ऑन ईच की इज अलॉटेड ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। देखिए डिजिटल में सबसे आसान चीज यही है कि यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब कई की पर क्या है कि 2 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, देखिए देखिए कई की पर देखिए ये 2 लिखा है या @ लिखा है, कई में कैपिटल A स्मॉल a लिखा है, कई में ये देखिए ये लिखा है। तो आपको 9 के लिए अलग कॉम्बिनेशन देना होगा और इसके लिए अलग कॉम्बिनेशन देना होगा, ये याद रखिएगा। ये जो कीबोर्ड है आपका, ये इंटरनेशनल है, ये दुनिया में हर जगह यही सिस्टम फॉलो होता है। अब कीबोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया आपको, कीबोर्ड पर ये जो पहला कॉलम है ये लिखे हुए हैं, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर दूसरे कैरेक्टर लिखे, तीसरा लिखे, या कि नहीं? आई होप यू एग्री कि कीबोर्ड पर ABCD, लेकिन कैपिटल A और स्मॉल a अलग अलग है, ये याद रखिएगा। कैपिटल A और स्मॉल a अलग है, कैपिटल B और स्मॉल b अलग है, तो दोनों के लिए कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब हमने क्या किया कि 8 बिट में से कहीं पर 6 बिट या 7 बिट हमने ले लिया, हमारे पास कॉम्बिनेशन अब बहुत हो गए। अब हमने क्या किया कि सबको एक एक कॉम्बिनेशन देना शुरू कर दिया।
जैसे स्पेस वाला जो है उसको हमने ये कॉम्बिनेशन दे दिया 1 और बाकी सारे 0, फिर 1 इसको दे दिया, फिर इसी तरह से 1 को दे दिया, 1 को क्या दिया हमने 11 000 1, ये बिट्स वाले हैं ये, यानी 7 लैंप है उसमें ये चलेगा। फिर 2 को 11 00 फिर 1 0, फिर 3 को 1 1, 4 को दोनों 0 बना दिया। तो ये इस तरह से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हर एक का कॉम्बिनेशन अलग है, ए बी सी सब। यहां आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा बता दीजिए जो रिपीट होता हो। टेल मी एनी कॉम्बिनेशन विच इज रिपीटेड। इट इज नॉट देयर। जैसा मैंने कहा कि अगर वो रिपीट हो गया तो फिर डिजिटल फेल हो जाएगा, राइट? तो अब आप जब ये बनाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, तो वो जब आप 2 प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये लैंप में ये वाले बिट सिस्टम जाएगा, मतलब उसके जो ये जो स्विचेस हैं वो इस हिसाब से ऑपरेट होंगे। अब ये सारे स्विचेस हैं ये, तो इस तरह से हमने अल्फाबेट्स को भी कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब आती है इंटरेस्टिंग चीज, आप अपनी आवाज को कैसे कन्वर्ट करोगे डिजिटल में? अभी तक तो नंबर और अल्फाबेट्स को तो आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आप अपनी आवाज को कैसे कन्वर्ट करोगे, अपनी वॉइस को? ये इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे कोई आंसर देना चाहे पहले, उसके पहले ट्राई करना चाहे तो बता सकता है। Anyone who wants to answer can also type in the chat box. आवाज को कैसे कन्वर्ट करोगे? चलो कोई बात नहीं। अब मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोगों ने अपनी आवाज को देखा है? How many of you have seen your voice? How many of you have seen your voice? Okay, how many of you have seen your heartbeat? अरे भाई, घर में आपका तो खैर ईसीजी नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स का औरों का ईसीजी होता है ना, तो वो डॉक्टर क्या देता है, वो एक कागज देता है ना, जैसे वो फिल्म इस तरह से होता है, पेज को उसको लंबा करेंगे तो आपको ऊपर नीचे इस तरह से वो आप डॉक्टर को दिखाते हो कि भाई हार्ट ठीक है कि नहीं है? ऐसे आवाज जो है जब आप रिकॉर्ड करते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपके वेव्स निकलती हैं, साउंड वेव। दिस इज एक्चुअली योर वेव। So this is the picture of human voice. This is the picture of human voice. अब हमको इस आवाज को डिजिटाइज करना है, कन्वर्ट करना है डिजिटल में, यानी कि 0 में लिखना है हमको। क्योंकि अगर हमने ये कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम नंबर्स को कर चुके हैं, अल्फाबेट्स को हम कर चुके हैं। अब अगर स्पीच को कर देंगे फिर वीडियो भी इसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि वो भी वेव्स होता है। अब हम क्या करते हैं, वॉइस तो इसी तरह से होगी, वैसे आई एम सॉरी, मैं कुछ आप में से बहुत सारे वेजिटेरियन होंगे, मतलब मटन को कीमा कैसे बनाते हैं? मटन को कीमा बनाने के लिए पहले उसके बड़े बड़े पीस काट लेते हैं, यानी कि उसकी सैंपलिंग करते हैं, और फिर हर सैंपल हर एक को ग्राइंडर में डाल देते हैं, तो ग्राइंडर में से उसके छोटे छोटे पीसेस निकल आते हैं, या जैसे गेहूं डाला तो वो आटा निकल आता है, छोटे छोटे पीस। तो ऐसे ही जो आपका जो ऑडियो है, ये मान लीजिए आपका सिग्नल है, ये आपकी आवाज है। अब इस आवाज के आपको सैंपल लेने हैं, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं ना लोगों के, तो ये देखिए आपको इस आवाज को हमने जगह जगह पॉइंट कर दिया, ठीक है, और इस आवाज के हमने
हाइट नाप ली, या इसको एक मिनट हम ऐसे करते हैं, ये आसान है। इस आवाज को हमने जगह जगह पर नाप लिया, ये तो कर सकते हैं। और ये वाली जो हाइट है इसको हमने, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स तो अभी कन्वर्ट करना आ गया डिजिटल में, भाई हाइट को हम मैथमेटिक्स से, अर्थमेटिक्स से हम लिख सकते हैं ना 4.5 3.2 या इस तरह से। तो इन हाइट्स को हमने नंबर्स में लिख लिया, ये सैंपल अलग अलग निकाल लिए हमने हाइट के। आप जरा दोबारा इसको देखिए, ये हमने पहले इस पे सैंपल ले लिए और हर सैंपल की हमने हाइट ले ली और उस हाइट को हमने नाप लिया। अब इसको थोड़ा सा, ये असल में जो गलती है कहीं पर मेरे पीपीटी में, ये हाइट आपने नापी तो उसकी हाइट जो है ये अर्थमेटिक में हमने लिख ली यहाँ पर 0.2 0.5 जो भी है। और हम अर्थमेटिक को डिजिटल करना जानते हैं, ये अभी हमने सिखाया, उसके पहले हमने देखा। तो हर जीरो को हम लिख सकते हैं कुछ 1 और 0 में, पॉइंट को भी लिख सकते हैं 1 और 0 में, और 2 को भी लिख, 0.2 जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही कॉमा, कॉमा को भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ही 0.4 को लिख सकते हैं। यानी कि इस हाइट्स को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हाइट को डिजिटल में लिख लिया। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे डिजिटाइज कर रहा हूं, मेस्मराइज कर रहा हूं। तो ये हर हाइट को हमने यहां पर बिट्स में ये इस तरह से लिख दिया, ठीक। यार ये बड़ा गड़बड़ होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे क्या लिखा है? यस सर, क्या लिखा है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ओके, इसका मतलब हमने क्या किया कि जो हाइट जो थी हमारी वो एनालॉग में थी, उसको ए बोलते हैं, और हमने अब उसको बिट्स में लिख दिया, इसको डी बोलते हैं। यानी कि इसमें हमने ए टू डी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर दिया, ए टू डी, ठीक है। लेकिन अब एक चीज बताइए, ये यार ये भगवान ने जो हमारे कान बनाए हैं, इसमें क्या डिजिटल आवाज जाती है कान में? मैंने एक आध मैगजीन में एक फोटो देखी थी, किसी की खोपड़ी बनी हुई थी और इसमें ये 1 0 वगैरह ऐसे कान में घुस रहे हैं फोन की तरह। क्या ये सच है? क्या कान में अगर हम ये 1 0 वगैरह देंगे तो सुनाई देगा? नो सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने हमारे जो कान बनाए एनालॉग, भैया सुनाई देगा तुमको। आंख जो बनाई एनालॉग दिखाई देगा। मुंह जो बनाया, अब ऐसा तो नहीं है कि जब हम मुंह में से बोल रहे हैं तो बिट्स निकल रहे हैं मुंह में से, ऐसा तो नहीं होता। तो भगवान ने ये सारी चीजें एनालॉग ही बनाई हैं। ये जो डिजिटल विजिटल की का जो कारस्तानी है इस बाबा की तरह, ये सारा मैन मेड मैनिपुलेशन है, ये आप याद रखिए कि वैसे सारी चीजें एनालॉग ही होती हैं। वी परसीव एनालॉग, वी हियर एनालॉग, वी स्पीक एनालॉग। तो फिर होता यही है, लेकिन उसको डिजिटल क्यों करते हैं? ये क्योंकि इसमें बेईमानी बहुत है। डिजिटल इसलिए करते हैं कि इसमें आप बहुत सारी गड़बड़ी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि आवाज को हमने पहले सैंपल लेकर के और बिट्स बना लिया, राइट। अब इन सैंपल से ये जो लिखा था हमने, इससे हम दोबारा जो हाइट थी ना वो वापस लिख ली हमने। कर सकते हैं ना? तो क्योंकि हाइट से ही हमने, हाइट को नाप करके हमने ये बनाया था, लेकिन यहां पर हम इसको इसी से दोबारा हाइट बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हाइट को हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा
एनवेलप बन गया आवाज का। अब हमने क्या किया, D to A कर दिया, वहां आपने A to D किया था, एनालॉग टू डिजिटल, और यहां हमने डिजिटल टू एनालॉग कर दिया। ठीक है सर, राकेश सिंह सर, आर के सिंह सर, जी। सर आपसे बस एक अनुरोध है, वी आर स्लोली एंड स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन, सो भैया आई हमने, वुड हम्बली वही मैं कह रिक्वेस्ट रहा यू हूँ, टू मैंने अमरीश जी को भी बताया था कि टाइम इज ऑलवेज शॉर्ट टू मी। जी जी मैं जी जितना कर पाऊंगा बस वही कर पाऊंगा, आगे नहीं कर पाऊंगा। मुझे जी मालूम है जी 4 सर, 4 बजे तक है आपका, हाँ जी लेकिन सर, मैं, देखिए ऐसा है कि मैं रशअप भी नहीं करना चाहता हूँ। जी जी, मैं बहुत फास्ट जाऊं और फिर बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आई डोंट वांट दैट। नहीं उसके सर, मैं बजाय जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप ब्रॉडकास्टिंग फील्ड से हैं, तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं सर। यस यस यस। तो जी ठीक है, अभी मेरे ख्याल से मेरे पास 20 मिनट 15-20 मिनट और है, ठीक है ना? सर मैं कहूंगा कि अगर आप 5-7 मिनट में अगर वाइंड अप कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी हमें लेना अच्छा होगा। ठीक है जी ठीक है। जी जी, तो ये पहले ये एनालॉग को जो है हमने डिजिटल से एनालॉग कर दिया। प्रॉब्लम है, एक तो जो हमने 2 सैंपल लिए थे को हम ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे। अब सवाल यह कि इसमें से सही कौन सा है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि आवाज को आपने डिजिटाइज कहीं अमेरिका में किया था और इंडिया में अब आपको ज्वाइन करना है, और वी डोंट नो कि कौन सा इसमें सही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है सैंपल बहुत नजदीक नजदीक लेते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब एनालॉग से डिजिटल बनाते हैं तो उस केस में हम जो सैंपलिंग करते हैं वो डबल दी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है। अब चूंकि वो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो एक तो होता है सैंपलिंग, ठीक है, एक तो सैंपलिंग होता है। अभी मैं इसको, और दूसरा होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब हर सैंपल की जो हम हाइट नापते हैं उसमें भी एरर आ जाती है। वो कैसे आएगी, जैसे आप लोग अगर अपनी हाइट, आप लोग मेडिकल कराने के लिए जाते हैं तो नर्स जो है वो आपकी हाइट लेती है, तो वो क्या करती है, एक स्केल के सामने आपको खड़ा कर देगी। अब अगर इसके आपकी जो हाइट है वो पॉइंट जो है उसके जो स्केल्स बनी हुई है, मान लीजिए वो 2 के बीच में आता है, तो वो क्या लिखेगी, मान लीजिए वो 6 फीट 5 इंच और वो उसके बीच में, मतलब वो पढ़ नहीं पा रही है, तो वो यही करेगी ना कि अंदाज से या तो ऊपर का लिख देगी या पीछे का लिख देगी, यानी कि कुछ एरर आ जाएगी ना, है ना, या इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ एरर आ जाएगी, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। तो ये जो जब भी हम ये करते हैं एनालॉग से डिजिटल, तो इसमें ये एरर आ जाती है क्वांटाइजेशन, ये इसका ड्रॉबैक है। अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे हाइट लेते हैं ना, तो मान लीजिए ये बीच में आ गया, तो आप इसको एग्जैक्टली नहीं नाप सकते। अच्छा, इनको फिर ये थोड़ा सा सुना देते हैं, एनालॉग डिजिटल तो बहुत टाइम लगा। देखिए अब ये हमारी जो जितने भी डिजिटल ब्रॉडकास्ट मीडिया है, इसमें हमारे सारे जो आवाज है वो डिजिटल में कन्वर्ट होती है। ट्रांसमीटर भी जो है, इसमें जो मॉड्यूलेशन होता है वो उस तरह का मॉड्यूलेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमें बिट्स भेजनी है। एक चीज याद रखिए कि एनालॉग में तो कम से कम आवाज थोड़ी दूर तक तो जाती थी। भाई आप जो बोलते हो एनालॉग आवाज है, वो कुछ दूर तक तो जाएगी ना, लेकिन अगर आपने आवाज के हाथ पांव टांग तोड़ दिया तब तो वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। तो बिट्स में क्या है, अगर आपने उस आवाज को बिट्स में बना दिया तो बिट्स तो वहीं पर रहेंगे ना। अब इन बिट्स को भेजना और कैरियर, दोनों के केस में एक ही है। देखिए कैरियर भगवान ने बनाया है, कैरियर की एक खासियत है कि वो हवा में तैरता है, हवा में तैर के जाता है। उसमें हमने अपने एनालॉग सिग्नल को डाल दिया था, अब हमने बिट्स को डाल दिया, तो बिट्स को कैसे रखेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो रास्ते में जो खराबी आती है वो ऐसी कुछ नहीं है। जो बिट्स हमें मिलेगी उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। अब ये डिटेल में है, मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं दोनों एनालॉग की क्वालिटी और डिजिटल की क्वालिटी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनाई दे रहा है?
जी सर, जी सर, जी। अब आपने देखा कि इस आवाज के अंदर बहुत सारे क्रैकर्स थे, क्योंकि ये एनालॉग थी। इसमें हमने एनालॉग सिग्नल को कैरियर के ऊपर बैठाया था, यानी मॉड्यूलेट किया था। तो नेचुरली जो, और ये करीब 400-500 किलोमीटर दूर हमने इसकी रिकॉर्डिंग की थी। अब इसी आवाज में हम बजाय एनालॉग बैठाने के हम डिजिटल आवाज बैठाते हैं। If I could, but nothing steady is as simple as black or white. You know, I spend every minute. Bienvenidos a अब esta आपने दोनों में देखा कि दोनों में क्वालिटी में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना। तो इसी तरह से एक सैंपल और है मेरे पास, ये क्वालिटी देखिए। ये एनालॉग था, और इसी में अगर इसी को हम डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करें, ब्रॉडकास्ट करें, ओके। तो मेरे ख्याल से नाउ आई विल कंक्लूड। तो मैंने अभी देखिए, आपको मैंने सिर्फ देखा जाए फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो पहला पार्ट है डिजिटलाइजेशन, सिर्फ इसी पर मैंने बातचीत की है, और मैं नहीं जानता हूं कि कहां तक मुझे सक्सेस मिली। लेकिन आप शायद ये तो जान गए होंगे कि आवाज को, अल्फाबेट्स को और सब चीज़ों को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनालॉग से डिजिटल जब बनाते हैं तो बिट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं, ये एक अलग प्रॉब्लम है। अब टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको उसका भी सैंपल दिखाता। और जब इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे बिट्स को, तो इसमें नॉइज़ वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कुछ बिट्स रास्ते में लुढ़क जाती हैं या कहीं गड़बड़ हो जाती हैं, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हम एनालॉग में नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रॉडकास्ट मीडिया जो अब आगे आ रहा है डिजिटल डोमेन में, उसमें बहुत ज़बरदस्त चेंजेज आ रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया रेडियो में भी डिजिटल DRM ट्रांसमीटर कहलाते हैं, DRM, डिजिटल रेडियो मोंडियल। इसमें हम लोग डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर दिया है हमने, एंड क्वालिटी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो मेरे ख्याल से यार मैं यहाँ पर बंद करूँगा, हालांकि आई हैव नॉट कंप्लीटेड इवन 50%, बट एनीवे आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। I'm sure that this was thoroughly an eye-opening session for all the spectators. Thank you, sir, for sharing a bag full of knowledge. Now, I would like to invite Mr. Mohit Kishore Vats, Assistant Professor, DME Media School, to moderate the question answer session. Thank you so much, Abhishek, and thank you, R.K. Singh sir, for explaining all the information regarding digital and analog system in such a nice manner to all our participants here in this conference. Other than that, I would also like you to thank the way you have explained us all the things related to digital broadcasting and how it works here. So, sir, कुछ सवाल हैं जो चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ। पहला सवाल आपके लिए है, do quantum computers use binary? Yeah, of course. फ्यूचर में जो सब चीजें हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, आप तो बहुत आगे का पूछ रहे हैं, जो भी लड़का पूछ रहा है या जी, स्टूडेंट पूछ रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग अब तो ऑलरेडी हम डिजिटल में चल रहे हैं, अभी इसकी वो और भी एडवांस स्टेज है। एनालॉग तो बहुत पीछे छूट गया। या जी, धन्यवाद सर। एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने अभी MW, SW और FM को एक्सप्लेन करके बताया, और हम देख रहे हैं कि अब जो ये ट्रांसमीटर्स हैं, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी MW, SW की, ये थोड़ी अब उस हिसाब से यूज नहीं होती जैसे बाकी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में FM ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग एट लार्ज की अगर हम बात करें, जिसमें हम FM को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, उनका क्या फ्यूचर है? देखिए, जहां तक मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कैरियर वही है। देखिए, कैरियर तो हम बना नहीं सकते, कैरियर तो भगवान की देन है,
और कैरियर जो अवेलेबल है वो एनालॉग में ही रहता है। तो कैरियर एनालॉग में और डिजिटल में एक ही चीज, सवारी एक ही है, उस पर सिर्फ बैठने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। पहले उसमें हम एनालॉग सिग्नल बैठाते थे, अब हम डिजिटल सिग्नल बैठाते हैं। ठीक है, अब ये है कि उस आवाज को हम कैसे भेज सकते हैं। तो मीडियम वेव रहेगा, हम लोग मीडियम वेव को भी डिजिटल, इसीलिए वो जो डिजिटल बना रहे हैं उसमें हम सिर्फ कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, कैरियर चेंज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मॉड्यूलेशन प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, कैरियर वही रख रहे हैं लेकिन कंटेंट को डिजिटाइज करके और जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है उसको हम चेंज कर रहे हैं। जी, एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आपने पॉडकास्ट के बारे में बात करी, तो जिस तरीके से हमारी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर हमारा आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है पॉडकास्ट का जो सिस्टम है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इवन अखबार हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई दूसरा अखबार हो, वो भी पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं, जबकि अखबार वो निकाल रहे हैं, वेबसाइट भी है। तो पॉडकास्ट का आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पॉडकास्ट का रेलेवेंस कितना ज्यादा रहेगा? बिल्कुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, हमारी जो आते हैं, जो हम लोग पढ़ते थे, जैसे अखबार पहले पढ़ते थे, आप देखेंगे जो पुराने लोग थे वो आज भी चाय के प्याले के साथ अखबार ही हाथ में लेते हैं, ये आदत की बात है। और जो छोटा बच्चा है वो अपना लैपटॉप लेके उसमें न्यूज पढ़ लेता है। अब ये हैबिट की बात है, आने वाली जनरेशन उसको कैसे करेगी। मतलब अब अखबार भी आपको इस पर अवेलेबल है, वो भी सारा डिजिटाइज होकर के इस पर आएगा। तो लाइफ इज गोइंग टू चेंज, लेकिन अब वो कैसे होगी, अखबार भी जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा एफएम, अब एफएम जो है अभी वो एनालॉग में है, लेकिन बहुत जल्दी एफएम में भी डिजिटल आ जाएगा। अभी हम क्या है कि जो मीडियम वेव में 30 मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेट कर रहे हैं, और एफएम जो है वो 88.88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक आता है। तो उसमें भी जब डिजिटल आ जाएगा तो क्वालिटी और भी अच्छा। दूसरा, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप स्क्रीन पर वो जो गाना चल रहा है उसके लिरिक्स भी देख सकते हैं, गाने वाले की फोटो भी देख सकते हैं, उसके अलावा शेयर मार्केट के रेट भी देख सकते हैं, ट्रेनों के टाइमिंग्स देख सकते हैं, एरो फ्लाइट वगैरह को लेट होती हो। तो ये सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वो आपकी डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में आएगी, आ रही है बल्कि। जी जी सर, वैसे सवाल बहुत हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो आखिरी सवाल मैं आपसे सवाल है कि आपके हिसाब से व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन ऑडियो इंजीनियरिंग and from where can one learn this skill and what is the duration of such courses, if you can please apprise all of us here. देखो माय डियर, लोग कई बार कहते हैं कि ऑडियो को तो अभी हमने जाना ही नहीं है। और मैं जब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स करता हूँ बच्चों के लिए कई कॉलेज, डीयू के कॉलेजेस में, और उनको जब हम ऑडियो के बारे में बताता है, मतलब हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है वो सबसे पहले कौन उसको लेता है, माइक्रोफोन। एट दैट टाइम वॉइस इज वेरी फीबल, यानी कि वो इट इज जस्ट लाइक ए न्यूली बॉर्न बेबी, और उसको हमें ढंग से हैंडल करना पड़ता है। तो आवाज के अंदर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ऑडियो इंजीनियर्स या ऑडियो जो चीजें हैं ये छोटा मोटा नहीं है। अगर कोई इसमें इंटरेस्ट लेता है, हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, नॉट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में फ्यूचर बहुत है, और इसमें कई कोर्सेज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ाई करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते हैं, अभी मैंने आप लोगों को कंप्रेशन नहीं बताया जो कि रिवॉल्यूशन है, ऑडियो वीडियो कंप्रेशन जो है, वो कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। तो इसमें डिजिटल डोमेन में अभी जो हमें ही अपने आप को अपडेट रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, और खास करके मेरा एक एम ये रहा है कि मीडिया के स्टूडेंट्स को मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ, दे आर वेरी गुड, अपने फील्ड में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी आ जाती है स्टूडेंट्स दाएं बाएं देखने लगता है, वो अवॉइड करता है। अगर मान लीजिए एक सैटेलाइट छोड़ा गया और उसको कहा जाए कि तुमको इंटरव्यू लेना, उसको क्या पता सैटेलाइट है कहाँ, दिखाई देता है, क्या करता है। तो ये इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट, बल्कि मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स। हमें व्हील इन्वेंट नहीं करना है मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए, हमें उनको सिर्फ वो चीजें बतानी है जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि क्या है। इसीलिए इस डिजिटल को मैं बजाय बाइनरी के बताने के,
क्योंकि मुझे पता है कि बाइनरी वगैरह किसी को कोई ना पढ़ेगा ना किसी को आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने बताया है शायद वो डिजिटल की पावर, डिजिटल, अभी मैंने मैनिपुलेशन नहीं बताया अनफॉर्चुनेटली, इसमें एक दिन का नहीं, ये तो पूरे एक हफ्ते का कम से कम कोर्स होना चाहिए। तो वो पढ़ने के बाद में वो फिर डिजिटल की कोई भी चीज जो है उसको वो समझ जाएगा कम से कम उसको। अभी मैंने ये तो बताया नहीं कि बिट्स जाती कैसे है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि बिट्स पैदा कैसे बिट्स होती है, यानी कि आपको बिट्स को वो ये करके सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन करके आपने बिट्स इकट्ठी कर ली है, लेकिन भैया आपको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बिट्स को भेजनी है, वो कैसे भेजोगे? भगवान ने आपको कैरियर दिया है, उस कैरियर पर आपको हर बिट को बैठाना है, यही ट्रिक है, उसको कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। और जब वो कैरियर तुरंत चला जाएगा बिट्स को उतार लेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी। यानी कि इसको अगर आप सिंपल तरीके से समझें तो ये बहुत ही आसान है। और एक बार आपको बिट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा, आईसीटी जैसे आपने नाम सुना होगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन आपने जो इकट्ठी कर ली बिट्स में, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, रेडियो टेक्नोलॉजी है, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें आपको कैरियर देती हैं, आपको बिट्स को इनके ऊपर बैठाना है और बैठा करके छोड़ देना है, ये है डिजिटल ट्रांसमिशन। इट इज वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर मैनर। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस बारीकी के साथ में इतने डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से समझाया। बस एक मैं वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, समय बहुत कम है हमारे पास में। आपने जिस तरीके से एफएम हो, एसडब्ल्यू हो, एमडब्ल्यू हो, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव को समझाया, मुझे मेरी क्लासरूम की याद आ गई। एंड मैं चैट बॉक्स में पढ़ भी रहा हूँ, काफी लोगों ने सराहा है जिस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। तो पूरे डीएमई मीडिया स्कूल की तरफ से, iCAN4 की टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब अनुरोध करता हूँ हमारे जो स्टूडेंट एंकर हैं अभिषेक, कि वो कार्यक्रम को आगे ले जाएं। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, sir. Now, I would like to request Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, Delhi Metropolitan Education, to give the concluding remarks. Thank you, Abhishek. Thank you, Mr. R.K. Singh, sir, for your master class on digitalization and broadcast media. Actually, your class was very informative and very interesting. और जिस तरह से आपने बताया, मोहित ने भी कहा कि सारे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जिस तरीके से सिंपल मैनर में आपने समझाया, वो स्टूडेंट ने बहुत कुछ सीखा है इसमें। आई नो स्टूडेंट्स हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सर। Thank you so much, ma'am. I would like to extend my gratitude to Mr. R.K. Singh for this enlightening session. I would like to extend my gratitude to Professor Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School, Convener iCAN4, and Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, Chief Associate Convener iCAN4, for the ideation and planning of all the sessions. I would like to thank our newsletter and media team, comprising of both students and faculty members, Ms. Krishna Pandey, Mr. Mohammad Kamil, Ms. Sukriti Arora, and Dr. Teenam Bora. I would like to thank Mr. Anmol Mehta for tirelessly working in making our events look more beautiful, digitally so, with the help of his prolific designs. I would like to thank Ms. Manmeet Kaur, Dr. Manasvi Maheshwari, Ms. Shruti V.S., Mr. Mohit Kishore Vats, and Mr. Pramod Kumar Pandey for their constant support and guidance. I would like to thank Mr. Ritik Ghosh, Mr. Sumantra Sarthidas, Mr. Sachin Nair, and Mr. Yogesh Sharma for providing the overall digital operations for the iCAN4. I would like to thank our entire team, all faculty members and students who have worked day and night, facing all the challenges and obstacles of the pandemic to make this conference happen. I must thank all our participants who joined this session. Dear participants, we value your feedback. Don't forget to drop your valuable feedback on the link posted in the chat box. Follow our social media handles for more updates and information. Don't forget to visit the DME website and the iCAN4 website for any or all details. Moreover, stay tuned for the upcoming session. We have a panel discussion on technological innovations and the future of media education at 6 p.m. See you all there. Till then, I take your leave. Have a great day.